तो आखिरकार आज नेता विपक्ष सांसद राहुल गांधी जुबिन गर्ग के परिवार से मिले। जी हां, आज राहुल गांधी असम में थे और राहुल गांधी ने सिर्फ एक बात कही कि जो सिंगापुर में हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जुबिन गर्ग के मामले में जांच पारदर्शिता से आगे बढ़नी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उनके बारे में गलत बयानी कर रहे थे। यह कह रहे थे कि जब भूपेन हजारिका की मौत हुई थी तब राहुल गांधी वहां गए भी नहीं थे, जबकि यह तस्वीर आपके सामने है दोस्तों, 2011 की तस्वीर। और यह तस्वीर किसी और ने नहीं, खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने 2011 में ट्वीट की थी। फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यह झूठ बोल रहे थे कि जब भूपेन हजारिका की मौत हुई थी तब भी राहुल गांधी नहीं गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा वो कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो सिंगापुर में हुआ उसको लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुना जाए। I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubeen Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore? Everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much. Thank you. और राहुल गांधी वहां रुकते नहीं हैं। दरअसल जुबिन दादा की कुछ बात ही ऐसी है कि उनका असर सब पर पड़ता है। राहुल ने कहा कि मैं उनके घर में गया, उनके घर की एक एक चीजों से मैं रूबरू हुआ और उनके घर में रखी एक एक चीज से पता चला कि जुबिन दादा यानी जुबिन गर्ग कितने महान शख्सियत थे। अब मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी की पूरी बात को सुने। लंबा बयान है, मगर जुबिन गर्ग को वो किस तरह से याद कर रहे हैं यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। सुना जाए। Under these circumstances, I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubeen Garg ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubeen and all we want is that the truth should be clear, that we
who love him so much, and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubin ji's widow, his sister, father, other family members, exactly what happened in Singapore. I said that myself and the Congress party are there to support them in any way, and if there's anything we can do, we're more than happy to help. I want to offer my condolences to the people of Assam who have suffered this cruel blow without expecting. From the blue, you lost someone so important, someone you loved. I stand with you in your grief. Thank you. तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, कुछ ऐसे थे हमारे जुबिन गर्ग जिनका असर सब पर पड़ता था। बहरहाल दूसरी तरफ राहुल गांधी के पहुंचने से पहले उनके बारे में एक झूठ फैलाया जा रहा था, और वो झूठ क्या था कि जब भूपेन हजारिका की मौत हुई थी तब भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, और अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो 28 दिनों बाद। यह आरोप कोई और नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे थे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं 2011 के हेमंत बिस्व शर्मा के एक बयान की तरफ, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं भूपेन हजारिका को, और खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने लिखा है कि राहुल गांधी सीन हियर पेइंग होमेज एट निजारा पार रेजिडेंस ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका येस्टरडे इवनिंग, इमेज जून बरुआ बाय टीपीसी। खुद कह रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह कि हेमंत बिस्व शर्मा को आखिर राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? आपको यह समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि जुबिन गर्ग उनकी मौत और उनकी मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके लिंक्स भारतीय जनता पार्टी के साथ होते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ दिखाई दी हैं। यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा इस मुद्दे को लेकर दबाव में हैं। सुनिए क्या झूठ कहा उन्होंने राहुल गांधी के बारे में। আজিও আহিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, খালি 28 দিনৰ পিছত আহিছে, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগে। ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নাহিলে, জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত যি নহওক 28 দিনৰ মূৰত আহিব বুলি শুনিছোঁ। অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ঘড়ী এতিয়াও 28 দিন পিছতেই দৌৰে। আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত 28 दिन पिछत घड़ी काटा। दोस्तों, जुबिन गर्ग की ऐसी विरासत है कि कम से कम हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो लोग तमाम हदों को पार करते हैं, और यहां पर भी यह हुआ। यकीनन राहुल गांधी 28 दिन बाद आए, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा की तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात, असम के अंदर कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं गौरव गोगोई, वो खुद गए थे उनके अंतिम संस्कार में। ये गौरव गोगोई ही थे जिन्होंने जुबिन गर्ग के फैंस के साथ असम पुलिस जो जबरदस्ती कर रही थी वो मुद्दा उन्होंने उठाया था। लिहाजा यह तुलना नहीं की जा सकती। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो क्या कांग्रेस को यह कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं गए? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो इन्हीं दोनों की तुलना की जा सकती है ना। लिहाजा हमें इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए, और हमें याद करना चाहिए वो विरासत जो जुबिन गर्ग छोड़ गए हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।